Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna. Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Vijana Bhutala Swayam Rupamadamahyam Tadati Swapnamritam Vandeham Shri Guru Shri Yutamadakammalam Shri Guru Vaishnavasya Shri Rupam Sagragatam Sadhana Raghunatam Tam Tam Chaturtam Satvaitam Sadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Rama Krishna Bhaktan Sahagana Lalita Shri Radha हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगन्नाथ गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते
तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पाञ्चाशत्तरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकार्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। Is it East Gosti or Mixed Gosti? Or mixed Gosti? In Krishna Lila, there is a lot of importance of Gosti Arta. Krishna is reciprocating with his coward friends and girls. Such reciprocation is called Gosti. Generally, we discuss each other's spiritual welfare in this exchange. This is how do we implement Krishna consciousness and how do we grow together, how do we pull each other together, because everybody has a different speed and yet we wait for people to continue the journey going back home back to God. So, the Gosti is described in Bhagavad Gita by Lord Krishna as mutual dealings between the spiritualists. The dealings, they are Krishna conscious welfare as well as physical welfare, which is the medium of carrying out Krishna consciousness. That is also discussed. But at the same time, it is the real welfare being discussed. Welfare doesn't mean it's the welfare of the body, the welfare of the family. Yes, when Krishna consciousness is in the center, then spiritual welfare will be able to sort it out. Machita Machita Prana, Bodhaitascha Parasparam, Tathayatascha Mamnityam Pushyanti Charanam. This is the basis of this Gosti. It applies to everyone who is participating. Of course, brotherhood is also there between the disciples of the Gurus. So, there is no bar. Of course, the disciples of the Guru who is now present, so you may worship Srila Prabhupada's Parampara. So that's okay, but at the same time, if anyone who comes in a respective
spiritual position, maturity, God brothers, and they are also very treated. If they have God brothers of the Guru, then they should be treated in Vaishnava way, but as Guru the spiritual master. And in the same way, the different categories of like-mindedness, seniority by initiation, seniority by maturity of the devotional service. Everything is taken into account. But this is a program which covers up the entire spiritual welfare, even though we are in different categories of different modes, it doesn't matter. But our thoughts are supposed to be centered around Lord Krishna, and our hearts are connected to Lord Krishna. Then, in that reference, we are addressing each other. Addressing means bodhayanta. Bodhayanta is avabodham. Avabodham means you speak your realized knowledge about how to behave in Vaishnava way. How have you matured in your Vaishnava behavior? That is avabodham. Avabodham is called realization. So we exchange the Vaishnava character by addressing each other by our behavior. Alright? So, Parasparam means within ourselves. It doesn't mean there is only a group of senior devotees they discuss. No. It's entire, congregation of the initiated as well as uninitiated disciples. Everybody is in progressive march towards Krishna consciousness. So this is a generalized, gathering to discuss the spiritual welfare of each other. Our talks should be centered around Krishna consciousness. That pleases Lord Krishna. Somebody wants to please Krishna, but some shortcomings are there. Somebody wants to please Krishna, but is not understanding because of lack of spiritual maturity. So the senior devotees can talk it out and mitigate the problem if somebody has that kind of shortcomings. Just for example, all the time we have to be aware and remain alert that anybody comes and needs so the progress in spiritual life does not end. We can discuss that, not in a special gathering, but all the time, because Vaishnava behavior is not for a short while meeting only. It is for all the time. Nityam. Aparitasyaman nityam. Tushyati charman. And they rejoice talking and mitigating the difficulties. So it's a spiritual welfare. As you respect the spiritual master, so should respect the
senior devotees like Bhakti Padma, Saurabh Pracharak Maharaj is here. Bhakti Saurabh Pracharak Maharaj is here. Please come on the stage. Sit down. Come on, come on. Vyas Puja has not begun yet. You have to answer to it is used to goes to you. So, we should rejoice and spread this happiness of Krishna consciousness by individually resolving all the nitty-gritty things. And it is not that, oh, okay, I have to go to empty out my heart. We can do within the group of our devotees. Oh my God. Too far. You are too near but too far. So, with this introduction of this Gospel, let us think what is the East for us. It's not East, but East. We are not going to bake a bread here by East fermentation, but we want to, what is beneficial East? There are two kinds of beneficial things. One which is called prayer, short-term benefit. Krishna consciousness is not short-term benefit. It's a long-term benefit. And for that purpose only you have to go to a guru for long-term benefit. Tasmat Guru Prapatyeta Jityasu Shreya Uttamam. Shreya means the long-term benefit. Uttama, one which is going to take out from the darkness of ignorance and put you in the limelight of knowledge. We are predominantly knowledge, but knowledge is required. Without acquiring Krishna consciousness of the knowledge how Krishna is teaching us and how the pure devotees have achieved that status of reflecting their realization, that knowledge is essential. That knowledge is essential and that will promote us. It should not be boring, but we are here gathered together for Easter Gospel. Not Easter Gospel yet. That will be after the Easter Gospel. Mystic means a very sweet eating and then talking also during the eating process. That's called Mr. Gospel. Mr. means the one that we like most. But in Easter Gospel, what is beneficial for long term for Krishna consciousness is easy for those who are very submissive, but it is difficult for those who are not. So therefore there is kind of gap or a distance for the communication. But everyone will be able to understand that this kind of discourse should be conducted within the group of disciples or in the temple
Previously, we used to keep special class on East Coast. But nobody cares Krishna. But one day, it should be phone platform and you can throw any question pertaining to your, realization of Krishna consciousness and verify. So in this way, we will be able to resolve many issues. What is the best of the welfare that we desire? Kind of a question for you. What is the best of the welfare that you desire? Many? Spreading the holy name. Anybody else? What is the best welfare that you desire for your Krishna prem? Serving spiritual master. Yes? How to serve? Exchange. Okay. Spiritual masters have multiple duties. So according to their availability, the questions can be laid there. We have seen many devotees, they were putting multiple heads because they were stuck. After Prabhupada left, these senior devotees were thinking that they were still infants. They were still infants. And they are not mature enough. So, they committed mistakes, but it was repaired. Still, it could not oversee so many functionalities. But it is still having the experiences of their own, they will be able to pass it on. So it will be beneficial to the future of this world. So such topics are there, which will be very important to take care. Only few are given the opportunity to enter into the administration, working out, management, like that. Everybody should not be. And they have also been trained. They have also been trained. Seniority means you have to know more and more and more. There is no end into knowing different aspects that help to promote unity of devotees within ISKCON. Then functionality to promote the glories of ISKCON. So many functions. Some are in public relationships because we are not a private organization. We are not a closed-minded organization. We have to think wide and
and give benefits to all different kinds of people. Prabhupada says that a devotee can, sit down in a corner and doesn't care what is going on around. It doesn't care. But now, if you are a well-wisher, because well-wishing character, Suridam Sarvabhutanam Gyatvam Shanti Ruchi. Well-wishing character is in Vaishnava. Because Krishna has given him the peace which is not found in the material world, in other kinds of thoughts, in other kinds of, behavior. They are not ideal. What is important is that do we get actual benefit? And this benefit should be spread and given or distributed. Chaitanya Mahaprabhu was not confused. He said, I am a gardener. In the garden of bhakti, the natural fruits are there, and I am distributing without any discrimination. I am distributing without any discrimination. Come and get it. It is your turn now to come and get it. Alright? So, a devotee is not mindful. It is broad-hearted. And in this way, the question of character to reach out, big benevolent. So the world will be satisfied. So in this way, we cultivate a character and we try to communicate with each other in that way. It is boring. We have to copy that because it will promote you, give you impetus and inspiration to bring out that character in you. A devotee is known by 26 qualities. That how much he is advanced, and try to see those qualities and apply for the welfare of everyone. So with this introduction of this diversity and the subject matter to be discussed, I'm inviting questions, and Maharaj will be also answering that. In other ways, what Srila Prabhupada has given to practice for the welfare of everyone, all the activities that we perform, try to check out that it is for everyone to participate and everyone to be benefited. So we have to be churning up those desires to reach out. How do we, help each other, and how do we promote each other? How do we make advancement in our spiritual practices by each other? What are the four principles that Prabhupada left for the perfection of the activities in Krishna consciousness?
What are the four? Books are there. Preaching is the lesson. Purity is the force and utility is the principle. Now we can look at it. How many of you are participating in these four aspects? Okay, books are there. How many of you are reading Prabhupada's books? Baba. Books are there. Those who are not, please encourage them to read the books. Preaching is the essence. How many of you are engaged in preaching Krishna consciousness to others? Few. Come on. हिंदी में बोलो अभी के पहले से ही कहते तो क्या दम निकल जाता है। तो बुक्स आर एवरी तो जो पुस्तकें पढ़ते नहीं, पुस्तकों का वितरण नहीं करते, इन लोगों के लिए जागरूकता देना आवश्यक होता है। और जो प्रचार नहीं करते क्योंकि पढ़े नहीं हैं, अब पढ़ने के बाद भी बड़ी ठिकाने नहीं तो प्रचार नहीं करते। लेकिन जितना पढ़े हो उतना ही तो प्रचार करो। थोड़ा सा भी लेकिन अपने सिद्धांत के अनुसार प्रचार करो। अपनी जो परम सत्य की बातें हैं वो एक छोटी बच्ची सरस्वती की एक बूढ़े आदमी को जब कहती है, डू यू नो हू कृष्ण इज? वह बुरा आदमी के दादा के नहीं, हमें पता नहीं है He is the supreme personality of God. देखो हिम्मत परम सत्य बोलने में कोई झिझकना नहीं चाहिए, लेकिन जो बोलेंगे वो अपने आत्मसात ही करेंगे। हम यदि बोलते ही नहीं, भूखे रहते हैं तो क्या फायदा? कृष्ण भावनामृत भूखे लोगों के लिए नहीं है, भूखे मतलब प्रचार। Utility is the principle, इसका मतलब क्या है? Utility is the principle. Utility क्या मतलब? Electricity is utility. पानी, यूटिलिटी बिल आता है नहीं, ये तो उसे यानी जो अपने उपयोग में आ रही हमारी आवश्यकता के अनुसार जो साधन चाहिए वो भगवान की सेवा में उपयोग कर, ये सिद्धांत है। सब कुछ चीज भगवान की सेवा में ला सकते हैं, लेकिन भगवान को अनुकूल हो ऐसी ही चीज लाए। और उसके बाद प्योरिटी सिद्धांत बलिया से विचार करना। कृष्ण भावना का सिद्धांत इतना बलवान है, उसको दर गुजर करना ठीक नहीं है।
हमें आलसी नहीं रहना है सिद्धांत के प्रति, हमें अपनाना होता है। और वो सिद्धांत यानी सिद्धियों का अंत को सिद्धांत कहते हैं। कृष्ण भावना की सिद्धि शास्त्रीय पद्धति से बताई गई और उसके अनुसार हम यदि अपना भक्ति का काम करते रहे तो अवश्य सफलता होगी। सिद्धांत हमेशा बलवान होता है। तो कहने का मतलब है कि ये भक्ति के संदर्भ में भक्तों का जीवन पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित होकर करना। तो ये चार आवश्यकताएं हर एक भक्त में होनी चाहिए और उसके बाद उसमें ही तो हमें एक दूसरे को उत्तेजन देने की आवश्यकता बनी रहती है। सुबह क्लास में भी इष्ट गोष्ठी में भी ऐसा ही प्रचार होता है। तो जैसे श्रीमद् भागवत की क्लास में भी आप देखोगे कि क्लास के अंत में किसी को कोई समझ नहीं है, क्या स्पष्टीकरण चाहते हैं, तो ये सब अंतर्गत ये इष्ट गोष्ठी के विचार से बिल्कुल अलग सा बात नहीं है। पूर्ण सम्मान से काम तो अवश्य ये सारे विचारों के आपने भगवत पर चालू रखिए और आपको उसका फायदा तो इष्ट पुष्ट की रूपरेखा बताए करना आप लोगों के हाथ में। हमारे साथ भी कर सकते हैं, आपस में भी कर सकते हैं, वरिष्ठों के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान इष्ट देव है। तो सभी अपने अपने इष्ट में स्थित है। लोगों के प्रसंग में हम बीच में खलल नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि प्रसंग आपका है, मेरा नहीं। हरे कृष्ण। सो गुरु महाराज हर एक व्यास पूजा फंक्शन के अंदर ये अवश्य कहते हैं कि ये डिसाइपल्स का फंक्शन है। और आज बैंकॉक के अंदर हमारे भक्तों ने जो यहाँ पे आयोजन किया है उसमें हर एक डिसाइपल के फैमिली को 1 गिफ्ट पर फैमिली दिया जा रहा है। ये गिफ्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे? दिस इज द फेस ऑफ गुरु महाराज। एक कॉइन है और कॉइन की दूसरी साइड है, वहां पे ये श्याम महल। श्याम महल इसके पीछे थिंकिंग क्या है? एक साइड पे गुरु महाराज है, सेकंड साइड पे श्याम महल है। So on an absolute platform, don't we say Krishna's name, form, qualities and pastimes are not different? ऐसे ही ये श्याम महल का प्रोजेक्ट और गुरु महाराज, I'd like to say, although Guru Maharaj is executing that, participating in this project is as good as serving Guru Maharaj personally. इसका मतलब ये है और ये पॉइंट की थीम है। अभी इसके पीछे कुछ पास टाइम है तो जनरेशन को बता सकते हैं ये पॉइंट के पीछे। सो वी विल इनवाइट द फैमिली, वन मेंबर फ्रॉम द फैमिली, वन बाय वन आप आइए। So basically, we request the disciples to just line up and come. Now, brahmacharis, if you want individual photograph, you can come. Otherwise, if you think you got a good disciples with you or good company, you can come together. Okay, that's all. Stop.
Please receive and take a photo and just move on. Next one will come. Please do not offer obeisances because we really need to. Assistant to the room. Take photo and then keep moving. That is the Shyam Mahal which is going to come in Bangkok. Shyam manifested in the form of a model. Soon it's going to manifest in the form of a big architect in Parliament. Please receive and keep going. My humble request, if you offer obeisances, you are going to delay. It will go up to 4:30. We need to start the Das Puja at 4 o'clock sharp. Maharaj need to go back and take rest. We are going to invite Maharaj again. Hope you understand. Once a person, group up. Sorry, photo. One by one. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. One by one. Hare Ram, Ram Hare Hare. तो महाराज के कर कमलों से हमको वास्तविक आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। वास्तविक आशीर्वाद क्या है? वो उनका हृदय। अभी उनका हृदय में क्या बसा हुआ है? श्याम महल। ये देश का नाम भी श्याम है, सियाम है। वास्तविकता में तो नहीं, प्रणाम मत कीजिएगा। महाराज का प्रणाम जो है, पहले आप उनका हृदय को धारण करके आप नीचे प्रणाम कीजिएगा। सीधा जाइए, प्रणाम मत करो, सीधा आप हाथ में लीजिएगा, सीधा नीचे उतर के प्रणाम कीजिएगा। प्रसाद दे के प्रणाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। ये देश का नाम है श्याम देश। श्याम देश का अर्थ है श्याम को इधर इस भाषा में सियाम बोलते हैं। बड़ा यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। इस बात को महाराज जी ने बड़ा सुंदर तरीके से किया है। तो राधा श्याम सुंदर मंदिर इधर निर्माण होने वाला है। राधा श्याम सुंदर मंदिर का जो रूपरेखा है, उसका जो आशा है, आपको महाराज जी आपके हाथ से कर कमलों से प्रदान कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? जैसे आपने ये जो महाराज के हाथों से जो लिया है उनका हृदय को, उसको परिपूर्ण करने का जवाबदारी हमने स्वीकार किया है। खास करके इष्ट गोष्ठी में जो हम सब समावेश हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, महाराज जी के शिष्यों का समूह है। ये शिष्यों का समूह का परम कर्तव्य बनता है कि हमारे गुरु का जो इच्छा है वो सार्थक करे, वो पूर्ण करे। उसके लिए हमको जितना हमारा सामर्थ्य है उससे 10 गुना अधिक मेहनत करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ठीक है जितना हो सके उतना करेंगे, वैसा नहीं चलने वाला। ये हमारा परम कर्तव्य है। आप में से कितने लोग हैं जो महाराज जी दीक्षा ले चुके हैं? हाथ उठाएं। बहुत लोग हैं। कितने लोग लेने वाले हैं? हाथ उठाएं। चलिए, तो मैं आपको थोड़ा सा दीक्षा क्या होता है उसके विषय थोड़ा सा बताता हूँ। शास्त्रों में कहा गया है, तापकुंडतता नामा मंत्रो यागश्च पंचमा अमीहि पंच संस्कारः परमेकांति तवः।
आ गया जय हो। तो ये 5 चीजें मिलके पंच संस्कार कहा जाता है। ताप, पुंड्र तथा नाम मंत्रो यागश्च पंचमा। ताप का अर्थ है कि गुरुजी हमको कंठी माला देके आदेश देते हैं, अभी इंद्रिय तृप्ति का प्रयास मत करो, सारा प्रयास जो है आत्मशुद्धि के लिए प्रयास करो। दूसरा पुंड्र, पुंड्र कहते हैं कि बुद्ध पुंड्र तिलक जिसको आप कहते हो, ये प्रदान करते हैं, प्रदान करके कहते हैं हमारा सारा प्रयास जो है किसके लिए होना चाहिए। जैसे भागवत में कहा गया है कि तस्यैव हेतु प्रयतेत कोविदो न लभ्यते भ्रमत्याम उपरितः। उस परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए जो इन 14 गुणों में आपको उपलब्ध नहीं है। वो क्या है? वो कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम जो है संसार में प्राप्त नहीं होता। गोलोक गोर प्रेम में हरिनाम संकीर्तन रूप में आया है। मैं इस हरिनाम के द्वारा प्रेम प्राप्त करूंगा, इसी का प्रयास करना चाहिए। जो भी तिलक धारण किए हैं, यानी गुरु जी की कृपा से तिलक प्राप्त हुआ है, उत्तपुंड प्राप्त हुआ, इसको सूचित करता है। तीसरा क्या है? नाम। आप सबको नाम मिल गया। पहले कोई नाम था, उस नाम को, उस नाम की जगह पे दास नाम दिया। जिस समय आपको दीक्षा प्राप्त हुआ उस समय आप कृष्ण का दास हो, आप दासी हो। ये तीसरा बात। मेरा स्वरूप दास और दासी है, लेकिन फिर भी इस स्वरूप का साक्षात्कार कैसे होगा? वो मंत्र जाप से होगा। देखिए मंत्र जाप जो है, मंत्र प्रदान करते हैं, गायत्री मंत्र प्रदान करते हैं, पहले हरिनाम प्रदान करते हैं, बाद में गायत्री मंत्र प्रदान करके साथ ये मंत्र का जप के द्वारा क्या प्राप्त होता है? स्वरूप का सिद्धि प्राप्त होता है। और 5वां कौन सा है जो दीक्षा के दिन हमको प्राप्त हुआ है? वो है याग। श्री विग्रह का सेवा पूजा आराधना की जवाबदारी प्राप्त हुआ। जिस दिन दीक्षा हुआ उसको शास्त्रों में आध्यात्मिक विवाह कहा गया है। और उस आध्यात्मिक विवाह का सार्थकता तभी होगी जब हम महाराज का जो अभिष्ट श्याम प्रोजेक्ट है, जहाँ राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर का सुंदर मंदिर का निर्माण हो रहा है, उस निर्माण में सहयोग नहीं देना है, जवाबदारी देना है। लोग क्या सोचते हैं? जितना हो सके उतने करेंगे महाराज जी। अगर आपकी पत्नी आपको कहे जितना हो सके उतना खाना बनाओगे, बाद में आप देख लेना, ये कहाँ का न्याय है? घर चलाने का जवाबदारी माता पिता का होता है, पति पत्नी का दोनों का होता है। वैसे जो घर है हमारा वास्तविक घर है, खास करके महाराज जी जितने भी शिष्यों का वास्तविक घर जो है ना, वास्तविक घर कौन सा मालूम है? आपका घर जिसमें रहते हो वास्तविक घर नहीं है, वो तो कबूतर का नाम है। तो वास्तविक घर कौन सा है? ये राधा श्याम सुंदर मंदिर अभी जो बन रहा है, श्याम महल। आप में से कितने लोगों के पास अपना खुद का घर है? बताइए। हाँ बताइए, खुद का घर किसी का है? सब भाड़े पे रहते हो क्या? हाँ, सब लोग लाइन में खड़े, सब तो हाथ उठाओ जिसके पास खुद का घर है। अभी भगवान के पास भी खुद का घर नहीं है। आपने अपना घर बना लिया अग्रवाल जी, अपना घर बना लिया। अभी अग्रवाल जी क्या करने वाला मालूम? भगवान का घर बनाने का जवाबदारी दे रहे।
जितने लोगों ने हरि बोल नहीं बोला वो भी हरि बोल बोलिए, और जितने लोगों ने हरि बोल बोला है ना, 1 2 उनका कर्तव्य क्या है? 1 2 हरि बोल। उनका कर्तव्य है राधा श्याम सुंदर मंदिर का निर्माण करने, कर्तव्य है। भगवान ने आपको घर बना के दिया, अभी हमारा कर्तव्य क्या बताइए? हाँ, भगवान के लिए अपना, भगवान का घर बनाना अपना कर्तव्य, हमारा कर्तव्य है। तो ये कर्तव्य दीक्षा के दिन हमको प्राप्त हुआ, दीक्षा के दिन ये कर्तव्य प्राप्त हुआ। ऐसा नहीं कि जितना हो उतना सेवा करेंगे, नहीं, कर्तव्य है। बेटा आएगा पिता के पास, पिताजी मेरे स्कूल का जो फीस है वो बाकी है, पिताजी बोलेंगे बेटा जितना हो सके उतना करता हूँ, होता है क्या? 1 2 जब घर चलाते हो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, उनको क्या बोलोगे? अभी जितना हो सके उतना भरना, बात भी देख लेना है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो वास्तविकता में हम सबका एक जवाबदारी है, ये मंदिर का निर्माण करने का जवाबदारी है। भारत में एक कहावत है, जब दान देने आते हैं ना, फूल नहीं तो फूल की पंखुड़ी, हाँ, वो फॉर्मूला इधर चलने वाला नहीं है। जैसे घर बनाने जा रहे हो, ठीक है, पूरा घर नहीं तो कमरा बना देंगे, किचन नहीं बनाएंगे, बाथरूम नहीं बनाएंगे, चलेगा? तो पूरा का पूरा होना चाहिए, तभी उसका फायदा है। ओके, महाराज जी का हृदय का जो सपना है उसको पूर्ण करने का जवाबदारी का संकल्प दिवस है आज। भले ही आपका दीक्षा अनेकों साल पहले हुआ है, आज महाराज के करकमों से जो मिला है आपको, ये वास्तविक दीक्षा है। अभी तक महाराज जी जो है वो प्रतीक्षा कर रहे थे, मेरे शिष्य जो है उनके हृदय में जो प्रेम का जो फल है वो कब पकेगा? अभी क्या हुआ? कच्चे थे, अभी पके। पका हुआ है हमारे हृदय में प्रेम का फल, उसका परिणाम क्या है, उसका क्या प्रतीक है? यही प्रतीक है, हम घर घर जाएंगे और इस मंदिर का निर्माण करेंगे। प्राय लोग सोचते हैं महाराज जी हमसे जितना सेवा हो सकता उतना करेंगे। आपका सेवा तो है, लेकिन मंदिर निर्माण कार्य भी बहुत बड़ा प्रचार का कार्य है। मंदिर निर्माण करने के बाद तो प्रचार होगा ही, लेकिन मंदिर निर्माण करने के समय जो प्रचार होता है ना, वो प्रचार एक अद्भुत प्रचार होता है। क्यों मालूम है? क्योंकि आप घर घर जाओगे, आपके ऑफिस में जितने भी लोग उनके पास जाओगे, आपके अड़ोस पड़ोस में जितने भी लोगों के पास जाओगे, जाके क्या करोगे? राधा श्याम सुंदर मंदिर का निर्माण के लिए आप भिक्षा मांगोगे। देखिए, दीक्षा का अर्थ है भिक्षा। दीक्षा लिया और लेने वाले ने दीक्षा नहीं मांगा तो आप अपना जपमाला वापस कर दो, आपका दीक्षा वापस कर दो। कितने लोग वापस करना है तो आप दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दीक्षा मतलब क्या है? क्या है? दीक्षा। क्योंकि जिस दिन दीक्षा मिलता है उस दिन दीक्षा मांगने का अधिकार मिलता है। ध्यान रखिएगा, ये सब शास्त्रोक्त बात है। हमारे वैदिक सभ्यता में इसी को कहा गया है दीक्षा। एक बार एक भक्त बहुत आग्रह करने लगा, रोजी दीक्षा दिलाएगा, दीक्षा दिलाएगा, महाराज से दीक्षा दिए, दीक्षा दिए। मैंने कहा दीक्षा करती क्या मालूम है? तो सब लोग ले रहे हैं,
कहा दीक्षा का अर्थ है दीक्षा। अगर दीक्षा लिए तो तुम भिक्षुक बनोगे, भिक्षा मांगना पड़ेगा। ऐसा है वो अगले साल देखता हूँ भिक्षा मांगना पड़ेगा। तो मैं जितना हो सकता देता हूँ। अरे आप तो दोगे, आपका बैंक में जो पैसा पड़ा है वो तो मंदिर का है ही। हमारा नजर आपके बैंक बैलेंस के ऊपर नहीं है, हमारा नजर है आप कितना कलेक्ट करोगे। घर घर जाओगे और भले ही वो $500 हो, 500 बात हो, 1000 हो, उससे मतलब नहीं। जितने भी लोग आपके मोबाइल में लिस्ट है ना, आपका मोबाइल में कितने लोगों का नंबर है? हाँ अग्रवाल जी, आपके मोबाइल में कितने लोगों का नंबर है? कितना होगा? 1000 तो होगा ना। अभी उनमें से एक व्यक्ति को भी नहीं छोड़ना है। आप व्हाट्सएप ग्रुप में कितने लोग व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे भी आप? हाँ कितने लोग हैं? अभी देखता हूं। जो लोग आपको मंदिर के लिए दान नहीं देते हैं उसको आपके मोबाइल लिस्ट में से हटा दीजिए। Okay, madam, one. हाँ? पता लगता है कि आपके मित्र कौन है, पता लगता है कि आपका संबंधी कौन है। ये बड़ा परीक्षा है। तो मैं चाहता हूं कि One, two. आपके मोबाइल में जितने लोगों का कांटेक्ट है ना, उनका कांटेक्ट भगवान से कराओ। भी राधा श्याम सुंदर से कराओ उनका कांटेक्ट, तभी वो कांटेक्ट है। नहीं तो वो क्या है, आपके मोबाइल में और आपके दिमाग में वायरस है। कहते ना वायरस घुसता है तो कंप्यूटर काम नहीं करता। तो ऐसे आपके मोबाइल में जितने कांटेक्ट है जो कृष्ण की सेवा करने के लिए तैयार नहीं है, वो सारा कांटेक्ट क्या है? वो कांटेक्ट नहीं बल्कि वायरस है। हरे कृष्णा जी। Okay, madam, one, two. Okay. तो मैं चाहता हूँ आपके मोबाइल में जितने भी कांटेक्ट लोग हैं, जितने मित्र हैं, उन सब के पास जाओ। मैसेज देने से नहीं चलेगा, मैसेज भी देना है, फोन भी करना, मिलने भी जाना है। मिलने जाना है और उनको कहो हमारे गुरुजी Look Camilla. राधा श्याम सुंदर मंदिर का निर्माण कर रहे हैं और इस मंदिर का पूर्णाहुति करना है। समय दिया गया है। 2025 में क्या होगा, 2026 में क्या होगा, 2027 में क्या होगा और 2028 में क्या होगा। और इनॉग्रेशन कब है मालूम है आपको मंदिर का? हम डिसाइड नहीं करेंगे। अग्रवाल जी आप बता दो कब है इनॉग्रेशन मंदिर का? One. मैं करूंगा लेकिन डेट आप बताएंगे। 2029 सब बराबर है। 2029 2029 देखो। आप भगवान की सेवा के लिए अगर हरि बोल उत्साह से नहीं बोलेंगे ना, आपका हरि बोल हो जाएगा। कभी बोलेगा हरि बोल बहुत कार्य के लिए होता है। एक बार मैंने पूछा किसी से, प्रभु जी आप बता रहे हैं कि आपकी दादी माँ बहुत बीमार है, अभी कैसी है? उसने कहा क्या बोलो प्रभु जी, उनका हरि बोल हो गया है। देखो हरि बोल के बहुत सारे अर्थ होते हैं। ठीक है, अभी जो भगवान की सेवा राधा श्याम सुंदर मंदिर की सेवा के लिए धन एकत्रित नहीं करेगा तो पता नहीं उनका क्या होगा। उनका भी हो सकता है जल्दी से हरि बोल हो जाए। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलके ये सपना है। क्या वो सपना? महाराज जी का सपना क्या है? राधा श्याम, इधर क्या बोलते हैं? सियाम बोलते हैं ना, सियाम। जो भी बोलो श्याम है, सियाम है, जो भी भगवान का सारे नाम, सारे जितने भी शब्द है ना भगवान के नाम होते हैं। लेकिन भी बड़ा सुंदर नाम है राधा श्याम सुंदर मंदिर। इस मंदिर का
जो उद्घाटन 2029 में होने वाला है, इसमें 5 साल का समय है। ये 5 साल का समय हमारे जीवन के लिए एक आध्यात्मिक संघर्ष के रूप में लेगा। आध्यात्मिक संघर्ष जो करता है भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। अंग्रेजी में कहा जाता है कंफर्ट जोन। अभी कंफर्ट जोन से निकलो, अभी बहुत हो गया। किसी ने कहा प्रभु जी हम शांति से जप करना चाहते हैं। पहले भगवान के सेवा में अशांत रहो, तभी आप शांति से जप कर पाओगे, नहीं तो आप ही शांत हो जाओगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, संघर्ष प्रभुपाद ने कितना किया संघर्ष। 69 ईयर्स 70 साल की उम्र में प्रभुपाद जी का संघर्ष देखो। अभी महाराज जी कभी इतना व्यास पूजा, कौन सा व्यास पूजा कौन सा साल है मालूम है आपको? 81 प्रभुपाद जी ने जो 70 साल में संघर्ष किया है, महाराज जी अभी 81 साल के समय में संघर्ष कर रहे हैं। अभी हरि बोल मत बोलिए, सहयोग दीजिए, ठीक है? हरि बोल बोल के प्रसाद लेके निकलना ये हमारा सिद्धांत नहीं है। घर घर जाना है और सबको भगवान की समझ है। अभी आज से ये नहीं कहेंगे हम दीक्षित है, हम क्या कहेंगे? अब अपने आप को भिक्षुक कहेंगे। क्या कहेंगे? कहेंगे और करेंगे। देखिए, दीक्षा याचन करना ये सबसे निम्न कार्य माना गया है। लेकिन जब आप कृष्ण के लिए भिक्षा मांगोगे तो भगवान श्री कृष्ण देखेंगे मेरे लिए जो कार्य कर रहा है, निम्न कार्य कर रहा है, उसको देख के भगवान श्री कृष्ण का हृदय द्रवीभूत होता है। Look at Milan, look at Milan, look at Milan. जब कृष्ण का हृदय द्रवीभूत होता है, देखो कन्फर्मेशन आ गया उधर से। कृष्ण आके बैठे, ये सही बात है। हाँ, पीछे मुड़ के देख रहे हैं ना, कृष्ण आए बताए ये बराबर है। जो व्यक्ति मेरे लिए संघर्ष करता है, जो मेरे लिए भिक्षाटन करता है, उसको देख के मेरा हृदय द्रवीभूत होता है। जब भगवान श्री कृष्ण का हृदय द्रवीभूत होता है ना, तब हमको प्रेम प्रदान करता है। ये प्रेम, कृष्ण प्रेम संस्कृति थोड़ी ना होती है। देखो 2-4 हजार रुपए कमाने के लिए कितना मेहनत करते हैं, कितना। एक व्यक्ति सुबह 7-8 बजे से लेकर रात को 9-10 बजे तक कितना मेहनत करता है इसके लिए, 10-15-20 हजार कमाने के लिए। थोड़ा और मेहनत किया, थोड़ा बुद्धिमान है तो लाख रुपए कमाया। लेकिन कृष्ण प्रेम इतना सस्ती चीज है, इसलिए क्या उसके लिए कितना मेहनत करना पड़े, उसके लिए मेहनत करना। इसलिए हमारा ये विनती है कि हम संघर्ष करेंगे, दिन रात यही सपना देखेंगे 2029 कब आएगा। वो दिन कब आएगा जब नया मंदिर का उद्घाटन होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगा। कब वो दिन आएगा जिस दिन यज्ञ हवन होगा, अनेकों वैष्णव आएंगे और ऐसा कार्यक्रम होगा 2029 को। थाईलैंड में आज तक ऐसा कोई कार्यक्रम ना हुआ है, ना भविष्य में। हाँ, उसके लिए क्या करना होगा? क्या करना होगा? भिक्षाटन करना होगा। मैं आपसे पैसा नहीं मांग रहा हूं, आपका पैसा तो है ही अपने पास। एक बार हमारे मीरा रोड में मंदिर का उद्घाटन का तैयारी चल रही थी, तो समय मैंने माइक लेके कहा सारे भक्तों को, मैं कहा कि एक खुशखबरी है और एक थोड़ा सा दुखद खबरी है। मैंने कहा कि आपको कौन सा खबर पहले सुनाऊं?
सबने कहा प्रभु जी गुड न्यूज सुनाइए, बाद में बैड न्यूज सुनाइए। मैंने कहा गुड न्यूज सुनाऊंगा, लेकिन साथ साथ में बैड न्यूज बाद में सुनाऊंगा, लेकिन वो बैड न्यूज को गुड बनाने का आपका कर्तव्य है, आपके पास सामर्थ्य है। कहा हाँ गुरु जी करेंगे। तो मैंने कहा कि गुड न्यूज ये है, अच्छा खबर ये है कि हमारे मंदिर निर्माण के लिए जितना भी धन की आवश्यकता है पर्याप्त मात्रा में है। सब लोग हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल रहे हैं। मैंने कहा एक छोटा सा बैड न्यूज, लेकिन आप उसको गुड बोल सकते हो, गुड कर सकते हो, करने के लिए तैयार हो। बैड न्यूज को गुड करने के लिए हम गए, अरे ठीक है। मैंने कहा वो पर्याप्त मात्रा में धन है अपने पास, लेकिन समस्या क्या है, वो आपके बैंक अकाउंट में है। खाली इतना ही फर्क है। तो लोग मैंने कहा आपके ऊपर है, अभी आपको बैड न्यूज को गुड न्यूज बनाना है कि नहीं? आप बताओ अभी बैड न्यूज है, क्या है बैड न्यूज? पैसा कहाँ है? हाँ किसके? बोले मेरे। अभी उसको गुड न्यूज बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? समर्पण करना पड़ेगा। हाँ? अभी ये गुड न्यूज को जो है बैड न्यूज गुड न्यूज बना दो, तो क्या हो मालूम है? तो कुछ भक्तों ने कहा प्रभु जी अगर इतना ऐसा बोलोगे तो हमको थोड़ा शर्म आ रहा है। तो मैंने कहा क्यों शर्म आ रहा है मालूम है? अगर आप चाहें तो आपका बैंक अकाउंट खाली करोगे तो पूरा मंदिर बन जाएगा, लेकिन मैं आशा नहीं करता। कारण क्या मालूम है? आप कर सकते हो, हमको एक एक पाई इकट्ठा करना है लोगों के पास। मंदिर जो है दान से नहीं बनता, भगवान का आपकी दान की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को आवश्यकता है आपकी सेवा की, प्रेम पूर्वक सेवा की आवश्यकता है। वो सेवा आपका चेक से नहीं होता है, आप कितने लोगों के पास गए, कितना इकट्ठा किए, वो महत्वपूर्ण। आपने 50,000 बांट दिया, अच्छी बात है, किसी बोलेंगे ये तो मेरा ही पैसा है, तो कौन से बड़ी बात है इसमें? तुम्हारे पास पैसा तो मेरा ही है, कुछ ना लेते। मैं देखता हूं कि आप कितने लोगों के पास है, कितने लोगों के पास जाके कितना इकट्ठा किया, कृष्ण वो देखते। आपका जो 50,000 भाट जो है ना, ऐसा है, वो उसके सामने मान लो कि आपने 50,000 इकट्ठा किया, वो 50 करोड़ के समान है। ये 50,000 आपने जो इकट्ठा किया ना, वो 50 करोड़ के समान है। इतना महत्वपूर्ण है। घर घर जाओ, जितना भी पैसा उनके पास जाओ, जाके किसका घर बनाने जा रहे हैं हम लोग? भगवान, आपका घर भगवान का है। ये जो घर बन रहा है किसका है? वो मेरा है। भगवान के लिए कोई घर की आवश्यकता नहीं है। गोलोक में निवास करते, चिंतामणि प्रकर सत्मसु कल्पवृक्ष। चिंतामणि धाम है भगवान का, कृष्ण का। क्या बना सकते हो उसके सामने? पत्थर का, सीमेंट का बनता है क्या? उसमें थोड़ी नारायण रहने के लिए। ये बन रहा है, मंदिर की आवश्यकता भगवान के लिए नहीं है, मंदिर की आवश्यकता किसके लिए है? मेरे लिए। जितना आप सोचते हैं मेरे लिए घर की आवश्यकता है, ये तो शरीर का घर है आपने बनाया, वो तो एक दिन मरने वाला है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक मिनट, तो हम जो मंदिर बन रहा है, जो सोच रहे मंदिर मंदिर नहीं है, वो मेरा घर है, वो आध्यात्मिक घर है। क्या शाश्वत रूप में मुझे निवास करना है। तो ये मेरा आपसे निवेदन है। व्यास पूजा के दिन, अभी आज रूप गोस्वामी पाद का तिरोभाव दिवस है, हरिदास पंडित का तिरोभाव दिवस है, पवित्र पावन दिवस है।
अभी हमारे पास कुछ समय है। महाराज जी वापस व्यास पूजा महोत्सव का प्रारंभ करने वाले हैं। उस समय हम और कुछ विचार करेंगे, तब तक आप सोच के रखिएगा क्या क्या करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Thank you, Maharaj. So, Hare Krishna. Now the first part of the program has finished. अभी महाराज थोड़ा रेस्ट लेंगे और ऑफिशियली महाराज व्यास पूजा 4 बजे शुरू होगा। तो 4 बजे महाराज को भक्ति सौरभ प्रचारक महाराज बताए कि कैसे इतना सारे लोग कर सकते हैं। आप कितना दे रहे मैंने बताया महाराज इस ओनली मौका मिलता है सबको महाराज का वॉश करने का। हम सबको मौका देना चाहते हैं, लेकिन आपका कोऑपरेशन चाहिए। वी नीड ऑल योर कोऑपरेशन। ठीक, सो व्हेन वी टॉक प्लीज एंश्योर मेल डिसाइपल्स ओनली will come on the left and right side of the stage. So when दो उठाएंगे और दो रेडियो इवेंट गोइंग लाइव। ओके, इफ यू ब्लॉक द कैमरा, इफ यू सिट हियर, सबका पीठ दिखेगा और जो दुनिया भर वीडियो देख रहा है आपका पीठ दिखेगा। So everybody wants to have darshan of the lotus feet and then we start with this. Okay, thank you very much. So we'll start the kirtan now. Kirtan part.
हेलो